Hello and welcome everybody to the session on water image. The session holds its importance in all the examinations for both class 6 and class 9th. Specifically for class 6 students preparing for Jawahar Navodaya exam, there will be a set of 5 questions based on this. Topic is simple, but you have to be very patient while finding the answer, because a small mistake or an error can lead you to an incorrect answer. Let us go ahead and understand the nuts and bolts of the topic water images. As we proceed further, the first and important thing to understand, like what we have done in the mirror images, we have to first understand the water images of English alphabetical series, all the letters in the capital letters. So we have taken a picture here, image here, in which we can see the water image of all the alphabets in the capital form: A, B, C, D. It is suggested that you write all these letters and their water images and you keep it at your front. जैसे आपने टेबल्स को रखा है, स्क्वायर्स को रखा है, उसी तरह ये वाटर इमेजेस को भी आप ड्रॉ करके जहां पर आपने मिरर इमेज को रखा है वहीं पर साथ में यू along with that you also keep the water images. Now important part to understand in the water images is the top part becomes the bottom part and the bottom becomes the top part, or basically we can say in water image the image gets vertically inverted, वो उल्टा हो जाता है. And here we have mentioned that some of the capital letters, they don't show any change in their water image form. कुछ ऐसे भी हमारे इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के लेटर्स हैं जो ओरिजिनल फॉर्म और वाटर इमेज फॉर्म में बिल्कुल सेम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल C, D, E, H, I, K, O and X, they remain same in the water image. After capital letters, let us move on to the small letters. कैपिटल लेटर्स के बाद अब हम स्मॉल लेटर्स के वाटर इमेजेस को देखेंगे. Moving on to the water images of small letters. Image has been mentioned here. अब इसमें आपको एक छोटा सा कंफ्यूजन ये बन सकता है कि कई बार हो सकता है कि आपका जो स्मॉल लेटर लिखने का तरीका है वो थोड़ा अलग है और इन्होंने जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया है वो थोड़ा अलग है. तो आपको ये जो मेथड है ये आपको थोड़ा यूज करना पड़ेगा, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा. जैसे जनरली कई लोग होते हैं उनका ए लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है, पर आपको ये वाला ए का फॉर्म और उसकी वाटर इमेज देखनी पड़ेगी. A, B, C, D, all the alphabets, the water image is given in the small letter form. And like capital letter, some alphabets of small letters are also considered to have a same water image. कौन कौन से हैं वो small letters? C, L, O and X. These are the English alphabet small letters whose water images are identical or they remain the same. After the letters, now let us move on to the digits. Moving on to the water images of digits, 0 will remain same and 8 will remain same. However, rest of the digits will change in their water image form. Now a basic understanding of water images. When we have to find the water image of any figure, any digit, any letter, then we have to remember that in the water image the top side of the figure appears on the bottom. ऊपर का जो फिगर है वो नीचे आएगा and the bottom side appears on the top. And when this happens, this phenomena is called vertical inversion.
और वी कैन से दैट द इमेज गेट्स वर्टिकली इन्वर्टेड. इमेज जो हमारी है वो उल्टी हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है. On this slide, let us now go ahead and solve some questions to understand this better. Question number 1. Now first let us understand the question. Alphabets are given in the capital form and ये जो मिरर शेप का स्ट्रक्चर आप यहां देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है. यहां से हमको रिफ्लेक्शन लेना है, मींस यहां पर बॉटम का रिफ्लेक्शन बनेगा. तो ये आपको जनरली क्वेश्चन में वैसे तो लिखा होगा कि वाटर इमेज ढूंढना है, लेकिन नहीं भी अगर लिखा हो तो आप ये समझ जाइए कि अगर ये मिरर इधर रखा हुआ है या रिफ्लेक्शन का ये पार्ट अगर इधर यहां पर है, बॉटम में है, इसका मतलब ये वाटर इमेज हमें ढूंढना है. सो आवर अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन इज, जितने भी हमें अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, जितने भी लेटर्स दिए हुए हैं, इनका हम वाटर इमेज ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ए. water image of A will be like this. ये वर्टिकल इन्वर्जन कर दिया आपने. Then it is H. H we know remains the same, उसमें कोई चेंज नहीं है. Then comes K. So K will become like this, which is more or less the same, बस उसके जो आर्म्स हैं वो थोड़े चेंज हो गए हैं. Then comes Q. Q will become like this. Then is Y, simple to draw. Then R. F. And finally comes G. And if you analyze very carefully, here the answer is option number B. तो एक और जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि करेक्ट आंसर निकालने के बाद आपको ऑप्शंस को भी क्लोजली एनालाइज करना है. अदरवाइज ऐसा ना हो जाए कि करेक्ट आंसर निकालने के बाद आप गलत ऑप्शन मार्क कर दें, क्योंकि इनको भी केयरफुली आपको देखना पड़ेगा कि हमारा आंसर कौन सा आ रहा है, मैच करना पड़ेगा. और बिल्कुल भी इसको आप मेंटली सॉल्व मत करिए. जब तक आप ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट हम जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें आप परफेक्टली ड्रॉ करिए, और एग्जाम में भी आप यही अप्रोच रखिए कि ड्रॉ करके ही आंसर निकालिए. आपके एरर के चांसेस जीरो हो जाएंगे. Alphabets in the small letters. Let's draw their water images. The first one is S. Small है पर मैंने थोड़ा सा बड़ा शेप लिया है for better understanding. It will become like this. Next alphabet is G. Water image will be this. Then the small letter T. Water image will be vertically inverted like this. Bottom part will go to the top, top part will come to the bottom. Next alphabet is N. It will be vertically inverted. Next alphabet is U. Vertically inverted. Next alphabet is R. अच्छा, अब ये R को बनाने का तरीका इनका थोड़ा सा अलग है स्टैंडर्ड, तो ये फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार होता है कि हम R को थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं. कई लोग R ऐसा लिखते हैं, कई लोग R ऐसा लिखते हैं, पर हमें याद रखना है कि हमें R को इस तरह लिखना है स्मॉल फॉर्म में. Then comes W. And finally again N. So this will be our water image of the given small letters. On a close analysis, we see the answer is option number D.
Next question. Water image of digits. 7 digits are given here, starting from the digit 7. Let us draw the water image of 7. Will become vertically inverted. The top part will come to the bottom. The slanted line will also change. Next is 3. It will be inverted. Next is 0, will remain the same. After 0 comes 2. Then comes 8. अब 8 को इन्होंने क्या किया, ऊपर वाला सर्कल छोटा, नीचे वाला थोड़ा बड़ा किया है. सो यू हैव टू बी ऑल्सो वेरी केयरफुल अबाउट इट. वैसे जनरली इसमें उतना डिफिकल्टी आपको नहीं होगी, क्योंकि 8 जनरली पता चल जाता है. 1, and finally comes 6. Now a point which you have to understand here is that when we are making the water image, nothing will happen on the left side to right side. The part which appears on the left side will continue on the left side. जो पार्ट लेफ्ट में है वो लेफ्ट में ही रहेगा, जो राइट में है वो राइट में ही रहेगा. उसमें कोई चेंज हमें नहीं मिलेगा. हमें सिर्फ टॉप और बॉटम पार्ट में चेंज मिलेगा. अनलाइक द मिरर इमेज. मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता है, टॉप बॉटम का कुछ नहीं होता. वाटर इमेज में टॉप बॉटम में चेंज आएगा, लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं होगा. Analyzing the options, answer will be option number C. Next question. It is a mix of capital as well as small letters. Let us draw their water images and find the answer. First is capital letter B. Water image will be almost similar, no change. Second is small letter W. Water image will be inverted. Third is capital letter Y. The water image of Y simple to draw. Then we have small letter M. Next is capital letter H, which remains the same. Then we have small letter K. And finally capital letter R. When we analyze all the options carefully, our answer will be option number A. Next question is based on capital letters, small letters and digits. Let's start drawing. T, 3, E, capital P, 9, B, W and 8. Let's draw their water images and find out the answer. Capital letter T, inverted vertically. Number 3, इन्वर्टेड वर्टिकली. और 3 में आप देखिए कि ऊपर का पार्ट थोड़ा छोटा, नीचे का थोड़ा बड़ा है, पर वो आंसर में उतना मैटर नहीं करेगा. दोनों पार्ट जनरली जो होते हैं वो इक्वली होते हैं. नेक्स्ट इज स्मॉल लेटर E. which will become like this. Next is capital letter P. Vertical inversion will be like this.
Next is digit 9. This will be the vertical inversion of digit 9. Finally comes small letter b. Small letter b will look as a small letter p. Then comes capital letter W. And finally 8. On a close observation, let us find out the answer. Most of the options are quite similar. Let us find out the answer, that which option is correct. Now when we look carefully, our answer will be option number 4th D. Now moving on to the water image of figures. फिगर में आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो बॉटम के पार्ट है, जैसे यहाँ पर इस फिगर में बॉटम में 3 हमें कैपिटल लेटर्स दिए हुए हैं, तो ये जो तीनों कैपिटल लेटर्स हैं, पहले तो ये वाटर इमेज बनेंगे और उसके बाद ये पहुँच जाएंगे टॉप पर, और ऊपर की जो 2 शेप दी हुई हैं ये वाटर इमेज बनेंगी और ये आ जाएंगे बॉटम पर। तो पहले हम इनके रेस्पेक्टिव वाटर इमेजेस निकालते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर के का वाटर इमेज बिल्कुल सिमिलर ही होगा, सिर्फ उसके जो आर्म्स हैं वो थोड़े चेंज हो जाएंगे। इट विल बिकम लाइक दिस। पी, water image of P will be this, and water image of T, very simple to draw. Now remember these 3 water image of capital letters, now they will appear at the top. ये ऊपर हमें दिखाई देने चाहिए, and based on this if you see that all the 4 options have a same appearance, सभी में K, P और T का जो वाटर इमेज है वो टॉप पर इन्होंने बिल्कुल करेक्ट बनाया हुआ है, तो इसके बेसिस पर हम एलिमिनेशन नहीं कर सकते। यू लुक एट ऑल द 4 ऑप्शंस एक्सेप्ट ऑप्शन नंबर सी, जहां पर उन्होंने पी को इन्वर्ट नहीं किया है। इन द ऑप्शंस ए, बी एंड डी हम देख रहे हैं कि अल्फाबेट्स की जो पोजीशन है वो सेम है, वाटर इमेज सेम है। तो नाउ लेट अस ड्रॉ द वाटर इमेज ऑफ दीज 2 शेप्स। The first shape is like this, a triangle with a line starting from the center and it is moved towards the right with the arrow facing the right side. और आपको ध्यान रखना है कि वाटर इमेज में लेफ्ट का राइट नहीं करना है, राइट का लेफ्ट नहीं, वो लेफ्ट राइट अपने पोजीशन पर ही रहेंगे। तो जो एरो जो राइट साइड की तरफ है वो राइट साइड की तरफ ही रहेगी, सिर्फ टॉप का पार्ट जो है वो बॉटम में आ जाएगा। तो पहले तो आप इस ट्राइंगल को रिवर्स कर लो, इन्वर्ट कर दिया, ये ट्रायंगल बन गया, और उसके बाद ये सेंटर से आपने एक एरो निकाली, राइट साइड की तरफ फेस कर रही थी, तो वो अब राइट साइड की तरफ ही फेस करेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड जो शेप है हमारी, एक लाइंस है और उसको 3 इन्होंने आर्म्स निकाले हैं साइड में, विच आर स्लाइटली बेंड टुवर्ड्स द राइट। तो ये जो बेंडिंग हो रही है टुवर्ड्स द राइट, और वी कैन से राइदर टुवर्ड्स दे आर गोइंग डाउनवर्ड्स, तो ये डाउनवर्ड्स के अब हो जाएंगे अपवर्ड्स। एंड बेस्ड ऑन दिस you can find out that answer is option number B. Now water image based on the figure. So there are 4 boxes. The square is divided into 4 boxes: top left, top right, bottom left and bottom right. So understand that top left will come to top bottom left and top right will come to bottom right. And among these figures, these 2 triangles will also be inverted. So first triangle, जो बॉटम लेफ्ट का जो ट्राइंगल है, ये इस लाइन के पास आ रहा है, क्लोज टू द बाउंड्री। तो ये जब ऊपर पहुंचेगा तो भी इस लाइन के पास ही रहेगा और खुद भी ये इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये ऐसा आ जाएगा। तो ये हमारा ट्राइंगल की जो पोजीशन होगी वाटर इमेज में वो ऐसी होगी।
दूसरा यहां पर एक शेडेड सर्कल है, वो टॉप लेफ्ट में टॉप पर है, वाटर इमेज में वो बॉटम पर आ जाएगा. Similarly, in the top right, I see there is this triangle which is in the bottom. तो इस ट्राइंगल का वर्टिकल इन्वर्जन जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा इस ऐसा, लेकिन ये लाइन के पास ही रहेगा, बाउंड्री के पास ही रहेगा, तो ये इधर पहुंचेगा और ये जो शेडेड सर्कल है ब्लैक, ये ऊपर आ जाएगा. So our answer, if you look at it, our answer will be option number A. Next question. सेमी सर्कुलर शेप दिया हुआ है, तो पहले ये जो शेप्स हैं इनकी हम वाटर इमेज ड्रॉ करेंगे. टॉप पार्ट जो हमें एक स्क्वायर दिया है अनशेडेड, वो बॉटम में ले आइए और इस फिगर का बॉटम पार्ट जो कि एक शेडेड सर्कल है उसे टॉप पर ले आइए. राइट साइड शेप को इसी तरह हम वाटर इमेज करेंगे. टॉप पार्ट शेडेड स्क्वायर है, बॉटम में ले आइए. बॉटम पार्ट अनशेडेड सर्कल है, टॉप पर ले आइए. लुकिंग एट ऑल द ऑप्शंस, इट्स विजिबल. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Now in this figure there is a capital letter N which is enlarged, बड़ा किया हुआ N है और डिजिट्स हैं 4, 2 and 6. तो पहले तो इन डिजिट्स का हमें वाटर इमेज लेना होगा. डिजिट 4 का आप वाटर इमेज लेंगे. दिस इज द वाटर इमेज ऑफ 4. डिजिट 2 का आप वाटर इमेज लेंगे. दिस इज द वाटर इमेज ऑफ 2. और डिजिट 6 का आप वाटर इमेज लेंगे. दिस इज द वाटर इमेज ऑफ 6. अब इनकी पोजीशन भी ध्यान में रखनी है. 4 जो कि टॉप पर है वाटर इमेज में, वो नीचे आ जाएगा. 2 जो कि बॉटम पर है वाटर इमेज में, वो ऊपर चला जाएगा. 6 की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ वो अपना वाटर इमेज बन जाएगा. बाकी उसकी पोजीशन राइट साइड में, वो राइट साइड में ही रहेगी. वो ना तो टॉप पर है ना तो बॉटम में, वो मिडिल में है, वो मिडिल में ही रहेगी. सिर्फ उसकी वाटर इमेज आ जाएगी. और इसी तरह जो एनलार्ज लेटर N है उसकी भी आपको वाटर इमेज लेनी है. 2 लाइन्स हैं और एक स्लैंटिंग लाइन्स है. तो स्लैंटिंग लाइन्स ऑपोजिट होकर ऐसी बन गई, बाकी ये 2 लाइन्स सेम रहेंगे. आंसर फिगर ड्रॉ करें तो ये N आ गया. टॉप का डिजिट 4 नीचे आ जाएगा, उसकी वाटर इमेज यहां पर आप ले लीजिए. बॉटम का डिजिट 2, उसकी वाटर इमेज आप ऊपर ले जाइए. और 6 जो है वो अपनी पोजीशन पर ही रहेगा, सिर्फ उसकी वाटर इमेज आ जाएगी. इफ यू एनालाइज, आंसर विल बी option number C. Here in this figure they have made a cross. So उस क्रॉस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उस क्रॉस की जो वाटर इमेज होगी वो भी क्रॉस ही होगी. There will not be any change. But the digits here 12, 22 and 10, they will be converted to their water images, and also 12 will come from the top to bottom, 10 will go from bottom to top, 22 is in the middle, it will remain in its position but it will just be inverted. तो पहले हम 12 का वाटर इमेज देखते हैं. इसका वाटर इमेज हो जाएगा like this. 10, this will be the water image of 10, and 22.
the water image of 22 will be this. And now let's draw this diagram. पहले हमने यहाँ पे एक क्रॉस बना लिया. 12 आपको नीचे ले आना है और उसकी वाटर इमेज बना लेनी है. 10 आपको ऊपर ले जाना है, वाटर इमेज ले लेनी है. 22 एज इट इज अपनी पोजीशन पर ही रहेगा, सिर्फ उसकी वाटर इमेज ड्रॉ कर लीजिए. लुकिंग एट दिस, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. Now in this image, too many shapes, but the question is not difficult. The top part will come to the bottom, the bottom figures will come to the top, and they will also be inverted. So let's start one by one. सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने जो इस तरह की लाइन खींची हुई है, इसको आप पहले वाटर इमेज कर लीजिए. और इसकी जो वाटर इमेज होगी, let's draw the square first. Its water image will be like this. Now, अभी टॉप पार्ट पर आप देख सकते हैं कि एक शेप दिया है जो थोड़ा सर्कुलर है और उसके अंदर एक रेक्टेंगल है, तो वो बॉटम में आ जाएगा. It will be like this with a rectangle inside. रेक्टेंगल का तो वाटर इमेज भी रेक्टेंगल ही होगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं है. Now here there is a circle जो टॉप पर है, राइट साइड पर है, वो रहेगा तो राइट साइड पर ही, पर अब वो बॉटम में इधर आ जाएगा. Then we have a slightly bigger circle at the bottom. It will go to the top. Then we have a rectangle at the bottom right. It will go to the top right. And then I have this rhombus like shaped or a diamond shaped structure. This will appear here like this. और इस डायमंड शेप स्ट्रक्चर के अंदर भी एक और शेप है. तो ये जो शेप है, ये इसको आप नीचे ले लीजिए और इस वाले शेप को आप ऊपर ले लीजिए. वाटर इमेज कर दीजिए. I'll draw this separately here. इस शेप की जब आप वाटर इमेज करेंगे तो it will be like this. तो इसे आप ड्रॉ कर लीजिए इधर. Close analysis, answer is option number 4th, D. So again, be very very careful. यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, दिस इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ डिफिकल्टी. आपको एग्जाम में इससे तो इजी आने वाले हैं, लेकिन फिर भी अप्रोच आपका सेम रहेगा, ड्रॉ करके ही आंसर निकालना है. क्वेश्चन इज सिंपल. और यहाँ पर आप देखें तो ये सिमेट्रिकल शेप है, बस चेंज यहाँ पर ये है कि टॉप राइट पर एक छोटा सर्कल है, सेंटर में और बॉटम लेफ्ट में सेम शेप के सर्कल है. तो इनकी बस पोजीशन चेंज हो जाएगी. बॉटम का ये सर्कल है, ये टॉप पर चला जाएगा, मिडिल का मिडिल में ही रहेगा, टॉप का बॉटम पे आ जाएगा. तो सर्कल की पोजीशन जब आप ड्रॉ करेंगे, दिस बिगर सर्कल विल बी हियर, मिडिल सर्कल विल बी एट इट्स प्लेस एंड स्मॉलर सर्कल विल कम एट द बॉटम राइट. अच्छा, बीच के जो शेप है वो सिमेट्रिकल है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है, दैट विल बी एज इट इज. तो उसे आप ड्रॉ कर लीजिए. And this side too, it will be a symmetrical shape. ये हमने ड्रॉ कर लिया. अब बस यहाँ पर जो चेंज आएगा वो सेंटर में जो हमें शेप दिया हुआ है, स्लाइटली एलिप्स शेप, तो इसको आपको वाटर इमेज लेना होगा.
इट इज़ लाइक दिस, और इसका जब आप वाटर इमेज लेंगे सो इट विल बिकम इन्वर्टेड वर्टिकली लाइक दिस। तो ये शेप आप यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। And this will give you the answer as option number A. Drawing this shape, this top part will come to the bottom, this shaded triangle will come to the bottom, this unshaded triangle will go to the top, and this line with two arms, it will go to the top. Let's draw this. सर्कल को नीचे ड्रॉ कर लीजिए। ये लाइन ऐसे इधर आएगी एंड दिस आर्म विल गो हियर, देन दिस शेडेड ट्राइंगल ये इधर बन जाएगा, ये हमने इसे शेड कर लिया, और ये जो अनशेडेड ट्राइंगल है ये टॉप पर चला जाएगा, इट विल कम हियर। On close observation, I can see that answer is option number B.